جیلس مز بند تو سہ تمہ سات حراستس مز نن آمت یل تہندی یم زمین مز اخ آئی ڈی فورسز اہلکار برآمد سپزمت یم پتہ سہ ناکار بناونہ آئی تو پولیس طرف کیس درج کر تحقیقات شروع سپدنس پہ پولیس طرف ون آمت کی شوائد تو ثبوت اشفاق احمدس خلاف حاصل سپدمت یم پتہ تم حراستس مز نن پتہ جیل سوزنہ آئی تو آز یہ کاروی عمل مز ان آمت یتھ دوران زمین تہذ آز سیز کرنا آئی جنوب ہندس سامنو کلگمس مز تمہ سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپدمت یل فورسز اہلکارو طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکارو طرف اخ مصدق اطلاع ملنس پہ علاقہ گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد گولین ہند تبادلہ یہ آخری اطلاع واتنس تام جاری تت ذرائع پہ ون علاقس مز دئی پہ ترین ملٹنٹن ہز موجودگی پتہ فورسز اہلکارو طرف یہ کاروی عمل مز ان آمت یتھ دوران آز دوپہرن تلاشی کاروی دوران دون رہائشی مکانن مز موجود ملٹنٹو طرف فورسز اہلکارن پہ ان کھل گول چلاونہ آئی یتھ دوران فورسز اہلکارو طرف تہ جوابی کاروی عمل مز ان آئی تو دشوین طرفو ونکن گولین ہند تبادلہ علاقس مز جاری یل زن گولین ہند تبادلہ سپدن پتہ فورسز اہلکارو طرف وسیع علاقہ مزید محاصرہ کرت تلاشی کاروی تہ شروع کرنا آئی جنوبی ہندس سامنو علاقس مز فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ پہ مزید تفصیلات پیش کرنے باپت کلگام پہ ونکن سن ساتھی حمید بٹ موجود حمید کیا تازہ ترین صورتحال سامنو علاقس مز تو ات جڑپ حوالہ کیا تفصیلات تہ نش امین یہ تقریباً 1 بجے گئی دون ترین گامن گھیراو یت مز سامن ات مز زن فوجس پور پہ اطلاع ات سا ملٹن چھپت یم زن اندر یم سات تلاشی کاروی لج یمو کریں تمہ پتہ آو اس زن وارننگ فائر آئی تم آئی دن مگر تمہ پتہ اس زن مزید سورس تھرو پتہ لگ ات سا دون مکانن مز 5 ملٹن چھپت مگر ون پور پہ پولیس کی طرف تصدیق کی کتیا ملٹن اندر یا کم تنظیم پولیس ونکن اس زن تک لک تم آئی ساری تم وارننگ دن تم بی پن گھر مز زن وت باقی تم آئی سارے سیل کر آو مزید تہ فوج بلاؤ ونکن انکاؤنٹر سیل جاری حمید اگر کت کرو یہ ون دون رہائشی مکان مز ملٹنٹن ہز موجود فوجس اطلاع سپزم تم مکان مز روزن ول گھر ول تم محفوظ مقامن کن فوج طرف نن آمت کن تم ون محصور یمن مکانن مز تمن آو موقع دن پن گھر من نیرنک اس زن وارہ یم زن بزرگ ام گام تم آئی تم ملٹن موقع نن تمن وونک کر سا سرنڈر اسا بچاو تھی مگر ون تم اس سرنڈر پالسی سب تم مسترد تو تم روی تم مکان مز قائم تم گھر ول تم آئی سیف طریقہ مز بیس جائیں شفٹ کرنا باقی یا سکول بچے یا باقی تم آو اصل پہ پن پن گھر دن گھن یم اندر تم آو سارے ون تم بہن پن پن گھرن مز حمید تہد سٹھا شکریہ تفصیلات فراہم کرنے باپت حمید بٹ زن کلگام پہ تفصیلات فراہم کران سامنو علاقس مز فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ تو گولین ہندس علاقہ گولین ہند تبادلہ جاری تو یپر جموں کشمیر پولیس زون طرف ٹویٹرس پہ ٹویٹ کران ون آمت امہ کتھ تصدیق تمہ خبر ہند تصدیق کرنا آمت ڈی ایچ پورہ سامنو کلگامس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان انکاؤنٹر شروع سپدمت یل زن ذرائع پہ ون دو پہ ترین ملٹنٹن تام علاقس مز موجودگی ہز اطلاع فورسز اہلکارن موصول سپزمز یم پتہ یہ کاروی عمل مز ان آئی تو سرنڈر پالسی تحت موجود ملٹنٹن سرنڈر کرنک موقع فراہم کرنا آمت تاہم ذرائع پہ ون آمت ملٹنٹو طرف یہ سرنڈر پالسی رد کرنا آمت اوڈی ورملس مز یہ رات سرحدس پہ فوج طرف درندازی ہز کوشش ناکام بناونک دعو کرنا آو تت آز پولیس تو فوج طرف مشترکہ پریس کانفرنس سنز کرنا آمت یتھ دوران فوجی ذمہ دارو طرف ون آو درندازی ہز کوشش ناکام بناونس دوران درنداز ہلاک کرنا آمت یل زن تلاشی کاروی دوران
ہتھیار تو گولہ بارود برآمد کرنے علاوہ کے اہم الیکٹرانک آئٹم تو دستاویز گولہ بارود ضبط کرنے اہم تو دستاویز کرنے In the early hours of 15th November, the suspicious movement of terrorists was spotted across the line of control اور اس موومنٹ کو ہمارے سرویلنس نے کنٹینیوسلی ٹریک کیا. جب انفلٹریٹنگ ٹیررسٹ نے لائن آف کنٹرول کو پار کیا تو ان کو انگیج کیا گیا. اس انگیجمنٹ کے دوران فائر ایکسچینج بھی ہوا. فائر ایکسچینج کے بعد جب ایریا کا ڈیٹیلڈ سرچ کیا گیا تب وہاں پہ ہمیں جو ٹیررسٹ کیجویلٹیز ہے, بہت سارے ٹیررسٹ کیجویلٹیز, there have been many terrorist casualties. The exact numbers can't be confirmed because of the close proximity to the line of control. Howsoever, 2 bodies of the terrorists have been recovered along with the warlike stores, جس میں 2 AK series rifle ہے, 2 pistols ہے, ساتھ ہی ساتھ 4 چائنیز گرینیڈس اور ان سارے ہتھیاروں کے ایمونیشن, میڈیکل سپلائز, ایٹیبلس, پاکستانی کرنسی اور کچھ ایک آئیڈینٹی کے پیپرز یا نارمل پیپرز وغیرہ ہمیں ملے ہیں. The most salient feature of this operation is the neutralization of Bashir Ahmed Malik. جو 2 ٹیررسٹ ہیں, ایک ان میں سے بشیر احمد ملک ہے اور دوسرے ان میں سے احمد غنی شیخ ہے. Bashir Ahmed Malik is an important cog in the cross-border terror mechanism which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. یہ وہاں کا POJ&K کا ایک بہت بڑا لانچ کمانڈر ہے جو بہت سارے تنظیمز کے انفلٹریشن میں ان کو سہایتا دیتا ہے. And he is also behind a lot of infiltration that has happened across the line of control. He's been in terrorism, or he's been actively involved in terrorism for last 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens, including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmed Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. ایک اور بات, اہم بات اس آپریشن کا یہ ہے کہ ونٹر سیٹ ان ہونے پر بھی دشمن کا یا ٹیررسٹ ان کا جو انفلٹریشن اٹمپٹس ہے, they have not reduced the regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists تاکہ ان کا ماترا جو ویلی میں ان کا جو نمبر نیل بان ہلس مز آز ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی طرف کنونشن سنز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ غلام نبی آزاد تو دویمو لیڈر علاوہ پارٹی ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت ز تم گھن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت چکسان کام کریں یت زن زیادہ کھوت زیادہ لوک پارٹی مز شامل سپدن. یل زن غلام نبی آزادن ات موقع پہ ون جموں کشیر ہندین لوکن ہند مشکلات نظر تل تھوت یہ پارٹی وجودس آمز یت زن لوکن ہز نمائندگی صحیح سمتس مز کرنے یی. بڈگامس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن سنز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجود صورت حالس حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن ضلع مز پارٹی مزید مضبوط بناونس حوالہ کام کریں یت زن زیادہ کھوت زیادہ لوک پارٹی مز شامل سپدن. یل زن پارٹی لیڈرو طرف ون آو نیشنل کانفرنس اخ عوامی تحریک تو یہ تحریک مضبوط بناون عام لوکن ہز ذمہ داری.
जिस रूल में आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, जहां आप अपनी परेशान हाल को इजहार नहीं कर सकते, वो तो ऑटोक्रेटिक रूल ही है। जहां पर आपको बोलने का हक नहीं है, अपनी मुसीबतें बताने का हक नहीं है। मैंने इशारा भी दिया रिसेंटली, जो मुलाजमों के बारे में एक ऑर्डर हुआ, वो अपनी बात कर नहीं सकते। हम भी हुकूमत चलाते थे, और जब भी मुलाजमों के मसाइल होते थे हम बैठते थे उनके साथ, हमारी कैबिनेट बैठती थी, कैबिनेट सब कमेटी एक बनी हुई थी जो मुलाजमों के साथ उनके मसाइल पर बात करती थी। लेकिन आज तो कैबिनेट सब कमेटी तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट कहीं है नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि हम बात भी नहीं कर सकते। कम्युनिटी हॉल माइत्रा रामबनस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज वकार रसूल वानियस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस हवाले काम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन। तो मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम चल रहे हैं एक सिस्टम से, कांग्रेस आगे उभर के आएगी और एक नंबर पार्टी में। जिस वक्त आजाद साहब ने आजाद पार्टी अपनी बनाई थी, उन्होंने 3 वाइस चेयरमैन बनाए थे, जनरल सेक्रेटरी बनाए थे, सेक्रेटरी बनाए थे, मेंबर बनाए थे, जोनल प्रेसिडेंट्स बनाए थे, वाइस चेयरमैन 2 हमने वापस कर लिए, अब 1 बचा है। जनरल सेक्रेटरीज आधे से ज्यादा हमारे साथ वापस आ गए, जो उसने सेक्रेटरी बनाए थे वो भी वापस आ गए। मुझे लगता है 60-70% जो डीपीएपी है वो कांग्रेस में वापस आ चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग है, जो वो भी डीपीएपी से ही है। कुछ दिन लगेंगे, उस पार्टी में भी ताला लगेगा, आस्ता आस्ता तसल्ले हो जाएंगे। जीवन नगर जम के लूकों तरफ आज स्मार्ट मीटर नस्ब करने खिलाफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, या दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमे बिजली तो इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत युदवे लूक रंग रंग मुश्किल मज हन आमत, तत महकमे बिजली तरफ इलाकस मज स्मार्ट मीटर नस्ब करने हवाले काम शुरू करना आमुत, यमकिन मुकामी लूक सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन, युत जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। तो डिजिटल मीटर चल रहे हैं, डिजिटल मीटर से लोग बहुत खुश हैं। जिस बात से जनता नहीं खुश है, आप वो काम क्यों जनता के साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? हम एलजी साहब से एक ही अपील करेंगे कि यहाँ पे से स्मार्ट मीटर उठाएं। स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। हम एक ही अपील करते हैं कि आप बड़े शांति तरीके से जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इनको बंद करें यहाँ से, और यहाँ से कृपया करके स्मार्ट मीटर उठा के ले जाएं। यूपी में लगाएं जाकर अहमदाबाद में लगाएं, गुजरात में लगाएं, उसके बाद जम्मू में आए। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। एक दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, दूसरे दिन नहीं लगी तो उसके दिन के लिए सोचना पड़ता है कहाँ से खाना है। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, पिछला बिल नहीं हम दे पा रहे, तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे लाइट हमारी कट जाएगी। गांधरबलस मज ये रांग पार्किंग तो ट्रैफिक जाम सहित आम लूक मुश्किलन मज हन आमत, तत आज SSP ट्रैफिक रूलरन जिलुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमे ट्रैफिक दोयम जिम्मेदार मौजूद। दौरस दौरान ये कय्यान गाड़ी वालन, स्कूटर वालन तो दोयमन ट्रांसपोर्टरन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आय, तत तिमो वोनमुत ट्रैफिक निजाम दुरुस्त करनस हवाले प्रेथ कह कदम तुलना आमुत। ताहम जरूरी से ट्रांसपोर्टर तो लूक करन महकमस अथवास, युत जन निजाम दुरुस्त बनावनस मज मजीद आसानी सपदे। मतलब क्या होता है इसमें, क्या सवारी उठाना क्या आपका वो है, हक है क्या? आज एक मेगा ड्राइव के तौर पे हम लोग आए थे और काफी हमें शिकायतें मिल गई थी कि यहाँ पे
जो कम्यूटर्स हैं, हमारे जो पैसेंजर्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं या फिर बिजनेस फैकल्टी को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जैम का सबब बनता है और कंजेशन में इनकी गाड़ियाँ काफ़ी टाइम तक फंस जाती हैं। उस सिलसिले में हम लोगों ने एक तो सबसे पहले हमने एक जो अपने नफरी है वो ऑगमेंट की है, यहाँ पे नफरी अनाउंस किया मैंने, यहाँ पे कम से कम 6-7 जो हमारे ऑफिशियल्स हैं हमने यहाँ पे मैंने जॉब पे लगाए हैं, और प्लस मैंने DTI साहब जो है नए उनको भी इंचार्ज DTI यहाँ पे मैंने तैनात किया, और एक SOP मैंने यहाँ पे तैनात किया, सो दैट the commuters as well as the passengers they should feel their movement hassle free। और उसके साथ साथ एक हमारा एक विजन और मिशन भी है इसमें कि ओवरलोडिंग जो है हम लोगों ने कर्ब करनी है, और जीरो टॉलरेंस टू द ओवरलोडिंग। किसी भी कारण कोई भी यहाँ पे ओवरलोडिंग का सबब बनता है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में इट शुड भी, और आपको फील होगा कि यहाँ वाकई जो प्रिस्क्राइब आपकी सवारियां हैं 7 से अलावा एक भी नहीं बैठेगी। खासकर मैं सुमो की बात करता हूँ, चाहे कॉलेज या कोई भी कमर्शियल व्हीकल है, और मेडोर में भी जितना भी प्रिस्क्राइब वहाँ पे सवारी है वहाँ पे, तो दे विल एड दैट ओनली। और उसके अलावा अगर एक भी सवारी है तो अकॉर्डिंगली हम लोग वी विल रिएक्ट, और एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट वी विल बुक दीज वॉयलेटर्स। और उसके साथ साथ मेरा एक और भी रहेगा कि 3 या 4 किसी के भी गाड़ी के चलान हुए उनकी RC और DLB कैंसिलेशन के लिए आगे थ्रू माय हेडक्वार्टर्स में उनको लिखूंगा, और हम लोगों ने कम से कम 120 के करीब अभी तक हम लोगों ने फॉरवर्ड किए हैं, और आने वाले दिनों में भी आप लोग देखोगे। और ओवर स्पीड और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और यूजिंग ऑफ द मोबाइल और नॉट यूजिंग दिस अपना जो आपका सीट बेल्ट वो नहीं पुट ऑन करते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने आपने देखा। और हेलमेट का भी एक मेरा काफी बड़ा एक ड्राइव चल रहा है उसके सिलसिले में, सो दैट हम लोग जो है यहाँ पे टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल द फैटलिटीज। मंडी में बैक टू विलेज किस 5 मरहलस तहत प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलावा अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूकों शिरकत कर। अत मौके पे ये अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूकों तरफ कया मसल वतलावना आई तज जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तीन तरफ वतलावना आमित मसल इंजरावनस हवालियन संजीद कदम तुलने युद्धन लूकन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्रामन हंद सांस कर तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज आसानी सपदन। यहाँ पे जितने भी विजिटिंग ऑफिसर साहब आते रहे उन्होंने पब्लिक ने उनके सामने जो है यहाँ काफ़ी डिमांडें रखी थी, लेकिन उतने जो है डिमांडें उसमें कोई भी पूरी उतनी नहीं हुई है। बहरहाल सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका एक रिव्यू होता है, उनका जायजा लिया जाता है। जैसे लोगों का यहाँ पे रिव्यू आ रहा है तो उसमें ग्रास रूट पे जो इसका इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो गुजारिश करेंगे कि इसके साथ फंडिंग भी हो। अगर 1 टू बैग विलेज है उसमें कम से कम 2 कामों का फोकस होगा तो ये हर पंचायत में 2-3 काम होंगे, उससे लोग भी हमारे साथ तावन करते हैं और इसका महकमा का भी तावन होगा और लोगों को फायदा भी मिल सकता है। एज विजिटिंग ऑफिसर अढ़ाई पीरा में आया हूँ और मैं 2 दिन से लोगों के बीच में हूँ। गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है, डिपार्टमेंट खुद आकर मॉनिटर कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। रोड्स की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, और ये हमारी रोड अढ़ाई की जो है ये पिछले 2014 में फ्लड में बह गई थी और PMGSY की एजेंसी ने इसको एग्जीक्यूट किया था और रिस्टोरेशन के लिए अभी थोड़ी सी पेंडिंग है और शायद गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई टेंडिंग प्रोसेस की है। वो जबरदस्त लोगों की डिमांड है कि वो रोड जब तक रिस्टोर नहीं होगी यहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल, दूसरी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगी और बाकी जितनी रोडें हैं उनको ब्लैक टॉप किया जाए। यहाँ पे प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट जमनी तोती बागसर महकमे सेहत तरफ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हजन बंडपुरिस मज अचन हिंद इलाज बापत महकमे सेहत डॉक्टरन हज खदमत इलाज करना आमज। अत मौके पे ये मरीजन हूं मुफ्त इलाज करना आव तज तिमन मुफ्त दवा बगरन मरीजन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन कैंपन हूं सांस रोज ब्रोह कुन जारी दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन गरीब लूकन राहत वात। प्राइवेट ये कैंप अभी पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो जब तक पेशेंट्स हम जो हमारा बैकलॉग है पूरे हाजन ब्लॉक का जब तक वो खत्म नहीं होता है
डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्शंस है कि तब तक ये कैंप यहाँ पे रहेगा और जितने भी लोगों को फायदा हम पहुंचा सकते हैं उतने लोगों को हम फायदा देंगे। हमारे कल पहला दिन था, पहले सर्जरीज हुए, कल हमारी 11 सर्जरीज हुई हैं। आज के लिए भी शेड्यूल है, पेशेंट आए हुए हैं, आज भी सर्जरी होगी। जिसको भी मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए और मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त सर्जरी ऑपरेशन की सहूलियत की फायदा। कुलगामिस में आज महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स तरफ एथलीट मीटुक साज करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों, जिले इंतजामी के अहदारों तो मुकामी खिलाड़ियों शिरकत कर। अत मौके पे ये खिलाड़ियों तरफ मुख्तलिफ खेलन मज हिस्सनियत बेहतरीन खेल हुंद मुजाहिर करना आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हिंद साज करनो मकसद ज नौजवान खिलाड़ियों मज मौजूद सलाहियत बरोई कार अन्न युद्ध जन यमन खिलाड़ियों ब्रो पकनस मज मदद मिले। यल जन इथन प्रोग्रामन हिंद मुनक़द सपदन सहित नशा मुक्त अभियान मुहिम कामयाब बनावनस मज त आसानी सपदन। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल लेवल एथलेटिक मीट मुनक़द ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें कश्मीर के 10 ज़िलात से बच्चे आए हैं। ये 2 दिन चलेगा, पहले आज और कल बॉयज़ के लिए है और उसके बाद गर्ल्स के लिए है। इस गेम में अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 बॉयज़ ने शिरकत की है। ये लगभग 400 बच्चों ने इसमें ऑल ओवर कश्मीर पार्टिसिपेशन यहाँ पे की है। तो इसका मकसद क्या है? हमारा यही मकसद है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने ये बच्चे हैं, जो हमारी अगली पौध है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, इनकी जो ये सेहत है ये ठीक रहे और जो सोशल इल्स है आजकल नशा, उससे बिल्कुल ये दूर रहे। जैसा कि हम आज सब यहाँ पे जानते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट का वेन्यू आज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट रहा है हमारे, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्टों ने पार्टिसिपेट किया है और बच्चे भी बहुत से तादाद में आए हैं। जैसे हम अब ये कहते हैं कि सपोर्ट किस लिए ज़रूरी है, जैसा कि आज के दौर में हमारे इस एनवायरनमेंट में ड्रग्स अवेयरनेस जो कि बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। सपोर्ट्स की तरफ हम अगर ध्यान देंगे तो उससे वो ड्रग एडिक्ट में इन्वॉल्व की तरफ या कोई कंट्रोल के जिम्मेदारन गैर कानूनी तौर सख्त बाजर खालनस हवाले शिकायत मौसूल सपदन तच महकम तरफ कंडीवारी इलाकस मज कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यथ दौरान गैर कानूनी तौर नालस मज सख्त बाजर खालन वालन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव पतमो कईयाहो दो पे महकमस लगातार अमे हवाले शिकायत मौसूल सपजम यम पत यह कार्रवाई अमल मज अन्न आई। यपर मुतलिक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कार्रवाई रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन गैर कानूनी तौर सख्त बाजर खालन वालन लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी। आजकल जो ड्राइव है, पिछली बार एसडीएम साहब को ये शिकायत मौसूल हुई कि ब्रिंगी नाले में कांडीवारा के मकाम पे जो भी इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है, इसके बारे में हमें रिपोर्ट तलब की है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट मुद्दू किया गया है, मगर हमारे डिपार्टमेंट में तुरंत एक्शन, कल हमें रसी हुई है ये लेटर है, तो आज हमने तुरंत एक्शन कर दिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2, 4, 5, 6 के करीब हमने ट्रैक्टर पकड़े हैं। उनको मौके पे हमने चालान भी किया है और इनको वारन भी किया है कि आगे से ऐसा काम न करना। नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।